In this video lecture, I will introduce you to the basic terminologies used in your PhD. Listen to the video till the end to learn the research terminologies. Here I am Dr. Kumkum Khawas and welcome to my channel Wow Chemistry. PhD. It is an abbreviation for Doctor of Philosophy. इस डिग्री को सबसे हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री माना जाता है जो कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी एक कोर्स में ऑफर करती है. एज पर द न्यू यूजीसी रेगुलेशन इट टेक्स एटलीस्ट 3 years of supervision for your research work and it can maximum go up to 6 years. The next term is research. Research is actually a combination of two words, re plus search. इसलिए इसको बोलते हैं search of knowledge. It is also known as the art of systematic investigation. So it can be either a new invention or already known or invented and further investigation is done so that we could improve the existing properties. For example, अगर मैं computers के evolution की बात करूं, तो पहले computers were invented during 19th century by Charles Babbage. At that time, it was very incompatible and bulky. Further, it was evolved and today it has been evolved to such an extent that it is present in our hands in the form of mobile phones and it has become very compatible. Research supervisor or research guide, both the terms are same. A mentor that assists or guides a research scholar throughout the research work. जैसे हमारे माता पिता भी हमारे गाइड होते हैं जो हमें हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं, हमें गाइड करते हैं. So one is the right to choose one's own guide, but there are some limitations from the supervisor's side also. An assistant professor can guide up to a maximum of 4. An associate professor can guide up to a maximum of 6, whereas a professor can guide up to a maximum of 8. आप co-supervisor भी रख सकते हैं which can be allowed in any interdisciplinary areas from other departments of the same institute or from other institutes. The next is research problem. Research problem refers to a specific issue or difficulty in an area of concern or a condition to be improved that a researcher aims to address to obtain a solution for the same. जैसे मैंने बात कही थी कंप्यूटर की इवैल्यूएशन के बारे में, तो जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की इन्वेंशन की थी तो उनके दिमाग में ये था, उनके दिमाग में ये रिसर्च प्रॉब्लम था कि कुछ ऐसे मशीन को इन्वेंट किया जाए जो हमारे कैलकुलेशंस को इजीली एक्यूरेटली कर सके, तो उनका ये रिसर्च प्रॉब्लम हुआ. Similarly, you will have to also address your same research problem. Research methods refers to all the operations or techniques or the various procedures, schemes or steps that are being adopted during the research work. And research methodology refers to the specific techniques used to identify, select, process and analyze information about a topic. तो methodology मतलब आपको कोई भी steps को समझ के करना है, उसके अंदर के अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा. तो these two terms sounds very similar to each other but they are very different to each other. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं सब्जी बनाने का, तो सब्जी बनाने का जो जनरल मेथड होगा वो क्या होगा, सब्जी को काटना है, धोना है, मसाला डालना है, फ्राई करना है, हो गया. लेकिन मेथडोलॉजी कब काम आता है, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको बैगन की सब्जी बनानी है और चने की सब्जी बनानी है, तो यू शुड नो द डिफरेंस कि दोनों स्टेप्स को हम कैसे ले जाए. फॉर एग्जाम्पल बैगन की सब्जी बनाने के लिए आप पहले बैगन को फ्राई करेंगे, फिर उसमें प्याज मसाला वगैरह डाल के फ्राई करके फिर बनाएंगे. और चने की सब्जी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले चने को बॉईल करेंगे, मसाला फ्राई करेंगे, चना मसाला को मिक्स करेंगे. इस तरह से आपको करना है. तो हियर इज वेयर द मेथडोलॉजी वर्क्स. Literature review. It simply means survey. Survey of books, articles, journals, internet or any other relevant sources which provides an overview of the current knowledge relevant to a particular issue, a particular area of research. For example, जब आप कभी भी नया कुछ रेसिपी ट्राई करते हैं, जैसे कि अगर आपको पिज्जा बनाना हो तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, रेसिपी शोज देखेंगे या फिर रेसिपी बुक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप बनाएंगे. उसी तरह से जब आप रिसर्च भी करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी जानकारी उपलब्ध है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है. नेक्स्ट टर्म इज जर्नल. जर्नल इज अ मीडियम थ्रू विच रिसर्चर्स गेट देयर वर्क पब्लिश्ड. मतलब इसको एक माध्यम माना जाता है जिससे कि आप अपना रिसर्च वर्क को पब्लिश कराते हैं. दे आर यूजुअली पेयर रिव्यूड, मीन्स दे आर
evaluated before publication. So there are many journals available जिसमें आप अपना काम को publish करा सकते हैं, but UGC has recognized a list of journals known as UGC Care List, which is available in its website and it is considered as valid. So क्या होता है कि आपको हमेशा कोशिश करनी होती है कि उन्हीं journals में आप अपने काम को publish कराएं. Data is a collection of facts, information or evidences in the form of numbers, words or measurements that are gathered by a researcher on relevant variables. तो variables क्या हो गया? Variables are any attributes that can have more than one value. अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि दिल्ली में जितने सारे भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जितने सारे भी स्टाफ्स हैं उनमें से कितने की सैलरी बिलो 10,000 है और कितने की सैलरी इन द रेंज ऑफ 10 to 20,000 है, तो अगर मान लेते हैं कि दिल्ली में टोटल 100 स्कूल्स है और ईच स्कूल में 10 स्टाफ्स है, तो टोटल कितने स्टाफ्स हो गए? 1000 स्टाफ्स हो गए. तो ये जो 1000 स्टाफ से आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कितने की सैलरी 10,000 से बिलो है एंड कितने की सैलरी 10 से 20,000 की है, ये जो इंफॉर्मेशन हो गया ये डेटा हो गया. और यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या हो गया? वेरिएबल यही स्टाफ मेंबर्स वेरिएबल हो गए क्योंकि दे आर डिफरेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और एज. Population is a large collection of individuals or objects having common characteristics जो कि हम research study के लिए choose करते हैं. और sample is the predetermined number of observations that are taken from a larger population to conclude inferences from the whole population. जैसे अभी मैंने बात की थी कि अगर हम ये research करें कि दिल्ली में जितने सारे भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें से कितने स्टाफ्स की सैलरी बिलो 10,000 है और कितने की सैलरी इन द रेंज ऑफ 10 to 20,000 है, तो मैंने बोला कि टोटल दिल्ली में 100 स्कूल्स है और 100 स्कूल्स में 10 स्टाफ्स है, तो टोटल हमारा हो गया 100 into 10 is equal to 1000 जो कि हमारा टोटल पॉपुलेशन हो गया, टोटल टारगेट पॉपुलेशन हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है कि हर स्टाफ मेंबर से जाके डेटा कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्टी हो जाती है. अगर हमारा टारगेट पॉपुलेशन और ज्यादा हो जाता है तो और डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम हर स्कूल से 3-3 स्टाफ मेंबर्स को चूज करेंगे. तो हमारे पास कितने स्कूल्स थे? 100 स्कूल्स थे. 100 into 3 300. तो ये 300 हमारा हो गया सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन. तो सैंपल को हम कह सकते हैं इट इज अ पार्ट और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट सेट ऑफ पीपल. Hypothesis is a proposed statement or prediction of the research work from a calculated guess. इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लेते हैं अगले दिन आपका एग्जाम है और आज आप अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी करने के लिए गए हैं. आप रात को घर लेट से लौटते हैं तो आपके दिमाग में प्रिडिक्शन रहेगा कि आपको मम्मी डांटेगी. अगर लेकिन आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ होगा तो मम्मी आपको नहीं भी डांट सकती है. तो क्या हो गया? हाइपोथेसिस मे बी करेक्ट, may not be correct. Next term is synopsis. Synopsis is the blueprint or the outline of the research work that one wish to carry during the entire research tenure. For example, जब भी कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले क्या होता है, उसका एक ट्रेलर आता है. तो पूरे 2.5-3 घंटे की मूवी को एक 2.5 मिनट के ट्रेलर में डिस्क्राइब करने का कोशिश किया जाता है, ऑल्दो हमें पूरी मूवी की तो जानकारी नहीं हो पाती है. उसी तरह से आपको अपने सिनॉप्सिस को भी इस तरह से ब्रीफली समराइज करना पड़ेगा जिससे पता चल जाए कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हो, अपना रिसर्च आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे. Coursework refers to a pre-PhD preparation. It is of minimum 6 months to 1 year varying from university to university. ये टोटल 16 क्रेडिट्स की होती है जिनमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजीज, कंप्यूटर्स अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है. यू विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 55% और इट्स इक्विवेलेंट. Abstract is a brief summary of a research article, thesis or any review article. इसको इस तरह से लिखा जाता है कि हमारी जो पूरे रिसर्च वर्क है उसको हम बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सके. इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आपने कोई वेब सीरीज देखी होगी तो पूरे सीरीज को एपिसोड वाइज दिखाते हैं. तो जब हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं तो क्या होता है, प्रीवियस एपिसोड को बहुत ही ब्रीफली समराइज करता है एक रिकैप के रूप में. उसे हम एब्स्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं. Research article या research paper both are same. It is an elaborative essay of the research work carried over a particular
topic after an individual is investigated to find the information on that topic. ये रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, आपके पूरे रिसर्च वर्क को डिस्क्राइब करता है। और जैसे मैंने आपको जर्नल की बात कही थी, ये रिसर्च वर्क ही आपका रिसर्च आर्टिकल ही जब आपका पब्लिश हो जाता है उसे ही हम जर्नल कहते हैं। Reference is the list of all the sources that a researcher uses in his research article. It is a way of giving credit to the source of information used in one's work. जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि जब हम कोई भी रिसर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो जब हम अपने रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च वर्क को लिखेंगे तो उन सोर्सेस को क्रेडिट देंगे इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंसिंग। नाउ रेफरेंसिंग कैन बी डन आइदर इन APA style or MLS style. They both include the author's name, title of article, year of publication, volume of journal, issue number of journal, page number of article. The only difference in both the style is that the arrangement and formatting is different. Citation. It is also a kind of reference, a way of giving credit to someone else's work. It is a reference to the source of information used in one's research, which the researcher directly quote in his research article. ये जो साइटेशन है और रेफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रेफरेंसेस आर रिटन एट द एंड ऑफ द रिसर्च आर्टिकल एंड साइटेशन आर रिटन विद इन द रिसर्च आर्टिकल। Bibliography is the list of all the sources that one has used during the entire research tenure. It includes the books, magazines, internet sources, research articles and published journals. बिब्लियोग्राफी को भी हम APA या फिर MLA स्टाइल में लिखते हैं, जस्ट लाइक रेफरेंस। नाउ पीपल जनरली गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि रेफरेंसेस इंक्लूड्स those sources are only mentioned in references which have been directly used in the research, whereas bibliography includes all those sources even if you have consulted them or taken a least idea from them. बिब्लियोग्राफी को हम जनरली थीसिस के एंड में लिखते हैं और रेफरेंसेस को हम रिसर्च आर्टिकल के एंड में लिखते हैं। नाउ इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विथ विच अ रिसर्च आर्टिकल हैज बीन साइटेड बाय अदर रिसर्चर्स। इसको हम कह सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द जर्नल इन अ पर्टिकुलर ईयर। सो इसकी जो वैल्यू है इट कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, और जो किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अगर ज्यादा हो तो उसे हम अच्छा जर्नल मानते हैं। जनरली ग्रेटर देन 5 आर कंसिडर्ड वेरी गुड जर्नल्स। प्लेगरिज्म, इसको हम एज अ चीटिंग या फिर एज अ फ्रॉड की तरह समझ सकते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क एंड प्रेजेंटिंग देम एज वंस ओन। जैसे जब भी आप अपने थीसिस को सबमिट करने जाएंगे तो आपको अपने थीसिस की प्लेगरिज्म चेक करवानी होती है। So there are many softwares available for the same, जैसे कि Turnitin हुआ, Urkund हुआ, and UGC's new anti-plagiarism policies allows up to a 10% content similarity. तो क्या होता है, आपको अपने प्लेगरिज्म चेक करवानी होती है थीसिस सबमिशन से पहले। प्री-थीसिस का मतलब हुआ preliminary thesis. It refers to a kind of presentation that is conducted in front of the research committee to make them aware that you are ready to submit your thesis. जैसे इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं उससे पहले आपका एक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से आप खुद को जज कर लेते हैं, आपके टीचर्स भी जज कर लेते हैं कि आप कितने प्रिपेयर्ड है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरह से प्री थीसिस भी हुआ। थीसिस, इसको डिसर्टेशन भी कहते हैं। It is a long piece of writing based on one's own ideas, compiling all the research work that you have done during the entire research tenure. जब आप थीसिस को पूरी तरह से लिख लेते हैं, बाइंड करवा लेते हैं, तो ये बिल्कुल एक बुक की तरह दिखती है। And once you submit your thesis in your universities, it is sent to at least 2 other universities for evaluation. उसका जो आखिरी टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है थीसिस डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द लास्ट गैप बिटवीन यू एंड योर डॉक्टरेट डिग्री। इट रेफर्स टू द प्रेजेंटिंग, explaining and defending your own ideas of your research work. It is open to all
और इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट, टीचर या एनी फैकल्टी मेंबर्स आपसे आपके रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको उन सवालों को इस तरह से डिफेंड करना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि आपको अपने रिसर्च की पूरी तरह से जानकारी है। इसमें आपके गाइड, एक्सटर्नल इवैल्यूएटर, रिसर्च कमिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल वाओ केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही और भी नए वीडियोस के साथ आऊंगी, इसलिए नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।